Hello students, in this session we are going to discuss about the first chapter of the geography, that is India size and location, and I am Kiran Gunegawkar. On the screen you can see the map of the world. Here the 7 continents are there on the world, in the world. First one is North America, second one is South America, third one is Africa, fourth one is Europe, fifth one is Asia, sixth one is Antarctica, and sixth one is Australia, and seventh one is the Antarctica. Okay, clear? अगले समझ में सबको। और 4 ओशियन है। पहला वाला ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, फिर उसके बाद अंटार्कटिक ओशियन, और जो है और कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। देयर आर ओशियंस ऑन द अर्थ आल्सो। और इंडिया कहाँ लाइज करता है? वेयर डज इंडिया लाई? इंडिया लाई इंडिया लाइज इन इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट में लाई करता है। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। So now proceed to the next part. There, here we before we will before we will study about the location and the size of our country, the basic concept has to be clear. So in the first part, I am going to clear the concept about the latitudes. What does the latitude mean? Latitude क्या होती है? You have to see that one. What are the latitudes? Latitude देखो नाम से दिया हुआ है लेटा, लेटाना। तो व्यक्ति जब कोई व्यक्ति लेटता है तो वो कैसे लेटता है? वो इस तरह से लेटेगा। ठीक है, आया समझ में? वो इस तरह से जो है वो क्या करता है? लेटता है। तो जो जितनी भी ऐसी जो लाइनें फ्लो करती है, कैसी वाली? इस तरह से ईस्ट टू वेस्ट में जो लाइनें फ्लो करती है वो सारी क्या कहलाती है? लेटीट्यूड कहलाएंगी। ओके, क्लियर? तो अब उनका क्या है? दे आर सर्कुलर। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ऑन थ्रू आउट द ग्लोब के ऊपर जो ओरिएंटल लाइन चलती है वो कहलाती है लेटीट्यूड्स। दे आर completely circular and parallel to each other. Circular means you can see that one here, it is one circle is there, it is 90 degree. Okay, then one circle, another circle, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, and then it will cover all. There are total कितने? How many they are in number? They are 80 in number. Parallel to each other means what? Where the difference between the two lines will be always equal. Whether it may be here or whether it may be here, this difference will be always equal. And specifically latitudes, what is the use of the latitude? Latitudes are used to know about the climate of the place, कि how does the climate, equator के पास जैसे climate बहुत ज़्यादा hot होता है, and as soon as we move upwards or downwards to from the equator, the climate comes down, the climate become colder. Okay, clear? Q, that we will discuss later. Okay, clear? So now let us discuss the next part, longitudes. Longitudes, what are the longitudes? अब देखो नाम से ही दिया हुआ है लॉन्गी। लॉन्गी मतलब लॉन्ग मतलब लंबा, मतलब ऐसी जो लेंथ वाली जो लंबी वाली जो लाइन रहेगी, दिस वे, ये ऐसी लाइन जो खड़ी हुई लाइन रहेगी, these are called as longitudes. Okay, clear? So you can see on the globe there are lines, straight lines, standing lines are there, so they are called as longitude. Okay, clear? और they are semicircular in nature. Semicircular रहती है और parallel, not parallel to each other. Parallel नहीं रहती, क्यों? देखो यहाँ पर you can see that one gap is more, but here the gap is coming less. Okay, clear? Here also the gap is reducing. So they are not completely parallel to each other at every places. And आया समझ में? In between there is a more gap, and in the at the top of the end of the this one lines the gap became less. Okay, clear? Total number they are 316 number. How? From the this is the central line, prime meridian, as you see in the map. Okay, figure में देखिए आप लोग। फिर उसके बाद ये जो है दिस आर 180 वेस्टर्न लैटिट्यूड्स कहलाएंगी, और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, सॉरी, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स कहलाएंगी, और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स आर 180 इन नंबर. ओके, क्लियर? एंड स्पेसिफिकली दे आर यूज्ड टू कैलकुलेट द टाइम. इसको याद रखना है कि टाइम का कैसे यूज आएगा, बिकॉज नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट. Next one is going to be the next part, that is India's location. First we will discuss about the location. In where does India locate? India कहाँ पर locate करता है, कैसे लगता है, क्या करता है, that we are going to discuss about in this video. Okay, clear? So situated in the northern hemisphere, as I already told you, the latitudinal extent is 80 degree 4 dash. It means what? How will you read it out? 80 degree 4 minutes. 8 degree 4 minutes. 80 not, sorry. 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north. Okay, clear? And for north and E for east direction. Okay, clear? So north मतलब latitudinal. तो latitudinal के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? north लिखेंगे. Okay, और longitudinal के लिए क्या लिखेंगे? eastern लिखेंगे.
क्यों, उसके पीछे फिर से वापस से बैक वाली स्क्रीन में चलते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और इंडिया कहाँ पर लाई करता है, ये जो इंडिया है वो आपका लाई करता है यहाँ पर, इधर की तरफ यहाँ पर लाई करेगा इस वाले रीजन में। ओके क्लियर, तो ये यहाँ पर इस तरह से रीजन में लाई करता है, तो ये वाला रीजन कौन सा हो गया, ईस्टर्न हो गया। और ये इक्वेटर है, ये आपका सेंटर जो लाइन है वो क्या है, इक्वेटर। तो ये जो डायरेक्शन है, जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका नॉर्थ है, फिर ये क्या है साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है वेस्ट है। ओके, तो इस केस में आपका ये जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट होता है। तो हमारी जो इंडिया की कंट्री है उसमें यदि हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूड कैसे आगे चल, ऐसे खड़े खड़े चले, तो ये खड़े वाले जो है वो कहाँ से यहाँ तक है, तो ये कौन से पार्ट में है, ये वाले जो है कौन से पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में। तो इसीलिए लॉन्गिट्यूड के साथ में हम लोग क्या लिखेंगे, लॉन्गिट्यूड के साथ में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लॉन्गिट्यूड के साथ में लिखेंगे ई, और लैटिट्यूड के साथ में हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे नॉर्थ। ये देखिए, तो ये जो एक्सटेंट है यदि हम मैप में देखेंगे, लुक एट इन द मैप, यू कैन सी दैट वन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये रहा नीचे, वाई नीचे, क्योंकि उसके नीचे इक्वेटर है, इसके नीचे क्या है इक्वेटर है, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है क्लियर, नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो नॉर्थ की डायरेक्शन में जाएंगे, तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। तो ये वाला जो है लेट लास्ट पार्ट जो है वो 37 डिग्री, इसको लोकेशन के लिए आ सकता है, इसमें गड़बड़ नहीं करना। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होती है, ये खड़ी लाइन, ये देखो ये वाली, ये जो है लंबी लाइन है, मैंने बता दिया लंबी लाइनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो वो कहलाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो 68 डिग्री 7 मिनट से ये रहा यहाँ पर, और लेकर के आपका 97 डिग्री 25 मिनट तक यहाँ पर है ये वाला पॉइंट आपका, और ये वाला पॉइंट गुजरात का ये वाला पॉइंट। तो ये जो है इन ये दोनों लाइन का डिफरेंस जो है दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये वाला पॉइंट आता है 97 डिग्री 25 डैश, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट आता है 68 डिग्री 7 डैश। ओके क्लियर, ईस्ट, ईस्ट लिखना है लॉन्गिट्यूड्स के साथ में ईस्ट, और लैटिट्यूड के साथ में क्या लिखना है, नॉर्थ लिखना है। अब आपका आता है टॉपिक ऑफ कैंसर, फिर उसके बाद टॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इट इनटू द ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, है ना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। कौन कौन से स्टेट से टॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, टॉपिक ऑफ कैंसर निकलने वाले स्टेट्स भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। गुजरात है फर्स्ट वन, सेकंड वन इज राजस्थान, थर्ड वन इज मध्य प्रदेश, है ना। ओके क्लियर, एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज झारखंड, फोर्थ वन इज छत्तीसगढ़, सॉरी फोर्थ वन इज छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा एंड देन मिजोरम। ओके क्लियर, तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज आपका हो गया ये सारे स्टेट से क्या निकलती है, टॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है ना, आया समझ में। और इसका शॉर्टकट मैं लिख के नहीं सुन के बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे तो आपको स्टेट्स के नाम हमेशा याद हो जाएंगे। लिसन केयरफुली, पंडित जग्गू राम के 6 मित्र हैं, पंडित जग्गू राम के 6 मित्र हैं। क्या है इसका शॉर्टकट, पंडित जग्गू राम, पंडित झारखंड का झ, गु राम के 6 मित्र हैं, के 6 मित्र, मित्र। अब इसका देखो कैसे याद करना, ये सारे स्टेट के स्टार्टिंग के नाम है ना, आया समझ में। तो पंडित मतलब वेस्ट बंगाल, ओके क्लियर, आ गया समझ में। फिर झ मतलब झारखंड, देन ग मतलब गुजरात, देन र मतलब राजस्थान, ओके, फिर एम मतलब एमपी, फिर उसके बाद देन के को नहीं लेना है, ये सिर्फ ओनली कनेक्ट करने के लिए दिया, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं। छे मतलब छत्तीसगढ़, ओके क्लियर, और मी मतलब मिजोरम, मिजो, ठीक है, और त्र मतलब त्रिपुरा। ओके क्लियर, नाउ इट इज क्लियर टू आर, सबको समझ में आ गया कि कौन कौन से हैं ये वाले मेरे सारे, है ना। तो इसको अच्छे से याद रखना है, पंडित जग्गू राम के क्या है 6 मित्र हैं, ये क्या है, ये कोड है किसके लिए, द स्टेट्स लाइंग ऑन द टॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये इस तरह से यदि आप कोड बनाओगे तो आपको याद करने में इजी हो जाता है। ओके क्लियर, so we will go with this code, such type of codes in our
portion in of geography. Okay, clear? So now let us proceed for the next part, that is India's size. हमने लोकेशन के बारे में पढ़ लिया है. देखो लोकेशन में एक और चीज देखेंगे कि इसके लेफ्ट में क्या है, अरेबियन सी. ओके क्लियर, ये यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी है. ये सॉरी हाँ अरेबियन सी. फिर यहाँ पर है आपका बे ऑफ बंगाल, इट इज बे ऑफ बंगाल. और नीचे की तरफ क्या है, इंडियन ओशन. तो बे ऑफ बंगाल में कौन सा आपका आइलैंड ग्रुप लाई करता है, अंडमान एंड निकोबार. और आपका अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड ग्रुप लाई करता है, लक्षद्वीप. ओके क्लियर. सो नाउ नेक्स्ट पार्ट, we are proceeding to the next part, that is size of India. इंडिया का साइज मतलब एरिया. एरिया कितना कवर करता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिकली दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पार्ट. दैट इज एरिया जो इंडिया का टोटल वर्ल्ड के एरिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखेंगे. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया. तो उससे पहले बड़ी वाली जो है 6 कंट्रीज कौन कौन सी है, उनको ऑर्डर में सबसे लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया इज रशिया, देन कम्स कनाडा, देन कम्स यूएसए, then comes China, then comes Brazil, and then comes Australia, and the seventh number is of India. So इसको याद रखने का तरीका ध्यान से देखेंगे. रेड कलर के लेटर से उसको याद करना है कोड के फॉर्म में, RC UC बाई, RC UC बाई. ठीक है, आ गया समझ में, BAI बाई, RC UC बाई, RC UC बाई. ठीक है, तो अब इससे अपने को याद हो जाएगा. ये आपका आर मतलब रशिया, सी मतलब कनाडा, यू मतलब यूएसए, सी मतलब चाइना, बी मतलब ब्राजील, ए मतलब ऑस्ट्रेलिया और आई मतलब इंडिया. तो इंडिया से पहले 6th लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, सबसे ऊपर वाली टॉप लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, 3rd नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, फिर उसके बाद इंडिया की जस्ट पहले वाली लार्जेस्ट कंट्री कौन सी. तो इस कोड से हम लोग क्या कर सकते हैं, हर तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर को दे सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज द सेकंड कोड ऑफ द चैप्टर. पहला कोड क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कौन कौन से स्टेट्स लाई करते हैं. तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, इसके लिए कोड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो स्टेट्स जो है, ये जो है वो ये जो सारे ये जिसको मैं सर्कल बना रही हूँ, दिस स्टेट्स लाइज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके क्लियर. दिस झारखंड इज देयर, यू सी दैट वन. वेस्ट बंगाल इज आल्सो देयर. फिर इसके बाद त्रिपुरा इज देयर एंड मिजोरम इज देयर. दिस स्टेट लाइज ऑन द टॉपिक ऑफ कैंसर. सी दैट वन हियर, टॉपिक ऑफ कैंसर हैज बीन मार्क्ड. और उसके लिए हम लोगों ने कोड लिखा था, एक देखो यहाँ पर वापस से अच्छे से लिख रही हूँ, पंडित जगुराम जगुराम के 6 मित्र. पंडित जगुराम के 6 मित्र हैं. ठीक है, क्लियर, आ गया समझ में सबको, है ना. तो अब इसमें से इस ए का हमारे को कोई यूज नहीं है और है का हमारे को कोई यूज नहीं है. बाकी सारे जो है वो लेटर्स अपने को यूज में लेने. तो ये क्या है, प मतलब वेस्ट बंगाल. ओके क्लियर. फिर झ मतलब आपका क्या है, झारखंड. फिर उसके बाद नेक्स्ट वन आपका गु मतलब गुजरात. ओके क्लियर. रा मतलब राजस्थान. ठीक है क्लियर. फिर म मतलब MP मध्य प्रदेश. ओके क्लियर. फिर उसके बाद 6 मतलब छत्तीसगढ़. फिर मा मतलब मिजोरम, मिजो. ठीक है. और 3 मतलब जो है वो आपका क्या आ जाएगा, त्रिपुरा. मतलब है त्रिपुरा. ओके क्लियर. तो ये इसको अच्छे से याद रखना है ना.
और इसकी जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री मतलब कौन सी, ये ऊपर वाली, ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो लैंड बाउंड्री है। और कोस्टल लाइन किसी भी कंट्री का कोस्ट के ऊपर जो लाइन रहती है, यू वॉच दैट वन, आई एम ड्राइंग इट हियर अगेन, है ना। देखो ये वाली जो लाइन है दैट इज कॉल्ड एज कोस्टल लाइन, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो समुद्र के किनारे किनारे है दैट इज कॉल्ड एज कोस्टल लाइन, है ना। तो कोस्टल लाइन जो है वो कितने किलोमीटर की, 75.1